गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी रिसोर्स की, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज गए थे, फिर रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा था, क्यों इंडिया में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स लैंड के बारे में पढ़ा था, क्या रीज़न है कि लैंड डिग्रेड हो रहा है और कैसे उसे कंजर्व करना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। पैराग्राफ वाइज पढ़ते और समझते हैं। Soil is the most important renewable natural resource. It is a medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. तो यहाँ पे soil का importance ये है कि soil के कारण ही plant का growth होता है और soil में ही मतलब various type of living organism रहते हैं, है ना। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि soil के formation के लिए million of years लग जाते हैं एंड रिलीफ, पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब कारण होता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण सॉइल फॉर्म होते, है ना। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic material. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical property, the soil of India are classified in different types. So यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, India has very relief features, landforms, climate realms and vegetation type. These have contributed in the development of various types of soil. First है alluvial soil. This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. The soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri rivers. अब एक्चुअली जो नदर्न प्लेन है मोस्टली वो एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है ना। ये तीन इम्पोर्टेंट रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से ज़्यादातर मतलब जितने भी लाइक सेडिमेंट जो होते हैं, एलुवियम कहते हैं उसे, एलुवियम कंटेंट हिमालय में पाया जाता है। एलुवियम आगे डिपोजिट हो जाता है और एलुवियल सॉइल बनाता है। याद रखना, एलुवियल सॉइल में कंटेंट कौन से मिनरल का होता है? एलुवियम, है ना। ये राजस्थान, गुजरात में भी पाए जाते हैं एंड डेल्टा रीजन जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर का जो डेल्टा रीजन है वहां पे भी पाए जाते हैं। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, near the place of the break of slope, the soil are coarse. Such soil are more common in Piedmont plains such as Luas, Chos and Terai. यहाँ पे एलुवियल सॉइल का बताया गया है कि लाइक ये सैंड, सिल्ट और क्ले से बने होते है ना। एंड साइज में वेरिएशन बताई गई है इस एलुवियल सॉइल की। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स or components, soil are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial, known as Bangar, and new alluvial, Khadar. The Bangar soil has high concentration of conker module than the Khadar. It has more fine particles and is more fertile than the Bangar. है ना। यहाँ पे आपको बताया गया है कि alluvial soil डिपेंडिंग अपॉन देयर एज भी क्लासिफाइड किए जाते हैं। ओल्ड एलुवियल को कहते हैं बंगार, न्यू एलुवियल को कहते हैं खदार, है ना। जो बैंगर सॉइल होता है
उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर मॉड्यूल्स होता है खदार के कंपेयर में, है ना। खदार जो होता है इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। Alluvial soil as a whole are very fertile. Mostly this soil contains adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soil in these drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. So alluvial soil अगर देखेंगे तो बहुत फर्टाइल होता है ना। इसके सॉइल कंटेंट में क्या होता है, पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है एंड लाइम होता है, जो कि आइडियल किसके ग्रोथ के लिए, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर पल्स क्रॉप्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। These soils are black in color and are also known as regular soil. So मैं नोट्स भी बनाते जाता हूँ। ये पूरा पढ़ा के मैं आपको क्या करूँगा, इसको एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। तो इस टाइप ऑफ सॉइल को रेगुलर सॉइल बोला जाता है, 1 मार्क का आ सकता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors of the formation of black soil. This of soil is typically of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and Krishna Valley. So black soil जो है वो फेमस होता है कॉटन उगाने के लिए, है ना। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल कैसे माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, इन सब रीजन में होता है. The black soils are made up of extremely fine clayey materials. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, and lime. These soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. The soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilted immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. So इसमें आपको ये बताया गया है, आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक सॉइल ये एलुवियल सॉइल वाला रीजन है, ये और ये ब्लैक सॉइल वाला रीजन है ना. सो ब्लैक सॉइल में ये बताया गया है कि अलग अलग जो कंटेंट होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम होता है. अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल. रेड soil develops and crystalline igneous rock in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. Yellow and red soils are also found in the part of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the western Ghats. The soil develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. So red soil जो है वो जहाँ कहीं भी आपको लो रेनफॉल मिलेगा, लाइक ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, वहाँ आपको रेड सॉइल मिलेगा. एक बार देख लेते हैं, ये पार्ट है. रेड सॉइल में अगर देखेंगे तो किसका डिफ्यूजन होगा, उसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है ना. और मैं तो यही जानता हूँ कि आयरन मैन जो सूट पहनता था वो रेड पहनता था. सो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है ये लर्न करने के लिए कि रेड को मैं आयरन के डिफ्यूजन से याद रखता हूँ और आयरन मैन के सूट से याद रखता हूँ. रेड येलो कब दिखता है, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल. लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक. द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. कहीं पे भी हैवी रेन होता है और टॉप लेयर अगर उसका निकल जाए तो वो बाद में बचा हुआ लेटराइट सॉइल होगा.
Laterite soil are mostly deep to very deep, acidic, pH level less than 6.0, generally deficient in plant nutrients, and occur mostly in southern parts like Western Ghats region of Maharashtra, Odisha, and some part of West Bengal and Northeast region. Where this soil support deciduous and evergreen forest, it is humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position of the landscape. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. So यहाँ पे लेटराइट सॉइल का हम लोग कौन से रीजन में देखते हैं, जहाँ पे वेट एंड ड्राई कंडीशन होती है. जैसे लेटराइट सॉइल हम लोगों ने देखा, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये रीजन में. एंड होता क्या है, जब रेन बहुत हैवीली पड़ती है किसी भी सरफेस पे, तो वो जो टॉप लेयर होता है उसको रिमूव कर देती है ना. सो यहाँ पे आप कैश्यू नट जैसे क्रॉप उगा सकते हो. आप लोग अगर गोवा गए होगे तो वहाँ पे कैश्यू नट बहुत ही फेमस है. अब एरिड सॉइल के बारे में पढ़ते हैं. एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. The lower horizon of the soil are occupied by kankar because of the increasing calcium content downwards. The kankar layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. After proper irrigation, the soil becomes cultivated as has been in the case of Western Rajasthan. So arid soil, सिंपल सा राजस्थान आप चले जाओ, आपको एरिड सॉइल मिलेगा, है ना. रेड और ब्राउन इन कलर होता है, सैंडी होता है टेक्सचर में, एंड सलाइन होता है नेचर में. कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट मिलता है, इतना मिलता है कि आप इवापोरेट करेंगे तो आप उससे सॉल्ट जनरेट कर सकते हैं, है ना. यहाँ पे अगर लोअर हॉरिजन में जाएंगे सॉइल के, तो वहाँ पे आपको कंकर भी मिल सकता है, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है. और अगर इसे प्रॉपरली इरिगेट किया जाए तो आप यहाँ पे कल्टीवेशन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट सॉइल्स. द सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड. दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स. इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय द सॉइल्स एक्सपीरियंस denudation. Denudation मतलब होता है heavy rainfall and are acidic with low humus content. The soil found in the lower part of the valley, particularly on the river terrace and alluvial fans, are fertile. अब ये फॉरेस्ट सॉइल की बात कर रहे हैं. ये जहाँ कहीं भी आपको लाइक सफिशिएंट रेन मिलेगा वहाँ पे ये फॉरेस्ट अवेलेबल होगा, है ना. ज़्यादातर ये लोमी होता है एंड they are acidic with low humus content. अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए. सॉइल इरोजन क्या होता है पहले वो पढ़ लेते हैं. द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. अगर कहीं पे भी मतलब सॉइल का जो टॉप लेयर है वो हट जाए, है ना, एंड सॉइल का, अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है. डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर किसी भी रीजन से होता है. हैवी रेनफॉल से भी हो सकता है ना. विंडी अगर कोई रीजन है, विंड के ब्लो होने से भी हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. अब क्या होता है, कहीं कहीं पे सॉइल फॉर्म होता है, फिर रेन आएगी तो सॉइल इरोजन भी होता है उस जगह पे. तो ये जो प्रोसेस है ये मतलब चलते रहते हैं. Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. अब जो ये बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कौन करता है? ह्यूमन एक्टिविटीज. माइनिंग करते हैं जिसके कारण क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता, है ना. हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को यूज में लेते रहते हैं और सॉइल फॉर्मेशन का टाइम मिलता ही नहीं है.
While natural forces like wind, glacier and water lead to the soil erosion, the running water cuts through the clay soil and makes deep channel as gullies. अगर हम लोग देखेंगे नेचुरल प्रोसेस में क्या आता है, विंड, ग्लेशियर और वाटर के कारण तो सॉइल इरोजन में होता ही है. कभी कभी रनिंग वाटर, जो तेज वाटर होता है, वो भी क्ले सॉइल को कट करता है, जिसके कारण चैनल बनते हैं, उसे कहते हैं हम लोग गलीज. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड. ये कल्टीवेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता और इसे बैड लैंड भी कहते हैं. इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस, और इन बैड लैंड्स को चंबल बेसिन में रेवाइंस कहते हैं. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. कभी कभी क्या होता है कि लाइक वाटर जो होता है एक शीट के फॉर्म में, है ना, स्लोप, जहां कहीं पे भी स्लोप होता है उसमें एकदम शीट के फॉर्म में फ्लो हो जाता है, जिसके कारण जो टॉप सॉइल होता है वो वॉश हो जाता है. उसे कहते हैं शीट इरोजन. एक एक मार्क में ये आ सकता है. Wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion. विंड के कारण अगर सॉइल का लेयर हट जाता है उसे कहते हैं विंड इरोजन. सॉइल इरोजन इज also caused due to the defective methods of farming, flowing in a wrong way. Example, up and down the slope form channel for the quick flow of water leading to soil erosion. कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटी के भी कारण हो सकता है soil erosion. So, flowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. अगर हम लोग एक contour line मतलब लाइन से प्लांट को ग्रो कर देंगे तो उससे क्या होता है, वाटर का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है. This is called contour flowing. Steps can be cut out on the slope making terrace cultivation restricts erosion. So आप लोग देखे होंगे फॉरेस्ट एरिया में, है ना, उत्तराखंड, इन सब में टेरेस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है. ये स्टेप्स बना देते हैं स्लोप को और उस पर कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को. वेस्टर्न एंड सेंट्रल आइलैंड्स हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. These break up the force of the wind. This method is known as strip cropping. हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग पढ़ सकते हैं. इसमें क्या करते हैं कि क्रॉप्स के बीच में ग्रास को उगने दिया जाता है ना, जिसके कारण विंड को वो रोक लेता है, विंड के फोर्स को. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे. रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट. तो लाइन्स ऑफ ट्री, अगर एक ट्री को एक लाइन में अगर प्लांट कर दिया जाए, तो इसको वो क्या करता है, वाटर के फ्लो को, विंड के फ्लो को थोड़ा कम कर देता है, जिसको शेल्टर बेल्ट भी कहा जाता है. The shelter belts have contributed significantly to the establishment of sand dunes and in establishing the desert in western India. So इसी के कारण क्या होता है, हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, है ना. So मैं आपको इसके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के नोट्स दे दूंगा, है ना. थैंक यू.